हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल बोर्ड्स पैटर्न फॉर्मूले लिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कवर करना होगा फॉर्मूले रिलेटेड टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, दैट मींस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। MO, magnetic dipole moment due to orbital motion of electron is given by the formula EV/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे। इसका यूज क्या होगा सर? स्टूडेंट्स, MVR, चेक दिस, MVR मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय लीनियर वेलोसिटी जिससे वो ट्रैवल कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो MVR को मैं एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस कर दूंगा बच्चों। तो फॉर्मूला हो जाएगा MO is equals to EVR/2, that is equal to E times of LO divided by 2 times of ME। आप समझे स्टूडेंट्स मेरी बात? ME का मतलब होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to minus 31 kg बेटा। ये छोटू ही आपको दिख रहा है, that is charge on one electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb। So कुल मिला के we are getting two important formulae related to magnetic dipole moment due to its orbital motion। It is EV/2, that is equals to E times of LO divided by 2 times of ME। Students, next step में हम यही फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने को ट्राई कर सकते हैं। बेटा, what we can notice is if electron is moving in same manner जो मैंने ये डायग्राम में दिखाया है, I think over here electron is moving in anti-clockwise sense। So can I say students, if electron is moving in anti-clockwise sense, the direction of conventional current will be ulta, that means in clockwise sense। आप समझे बेटा मेरी बात? If electron is moving in anti-clockwise sense, मैं मेरे कर्व फिंगर्स को उसके डायरेक्शन में रखूंगा। So what I find is जो मेरा थंब है it is pointing outward। बेटा outward का मतलब होगा डॉट। So direction of angular momentum due to orbital motion of electron can be considered as dot over here। Yes। अच्छा, conventional current बेटा किस तरफ है? Clockwise। So curved fingers को मैं clockwise रखूंगा, thumb is pointing inward। सर inward का मतलब होता है क्रॉस। So MO vector, magnetic dipole moment due to orbital motion of electron is taken as cross। तो बेटा LO वेक्टर के लिए डॉट होगा, MO वेक्टर के लिए क्रॉस होगा। So can I say that the two vectors are in opposite direction? That means बेटा MO vector and LO vector are anti-parallel vectors। That means मुझे वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन का यूज करना। बाकी सब तो सेम है बेटा। स्केलर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्केलर है, 2 स्केलर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्केलर है। MO वेक्टर LO वेक्टर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट है ओवर हियर, तो मुझे यहां पे नेगेटिव साइन का यूज करना होगा। बेटा यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म मिल सकता है जिसे हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। स्टूडेंट्स, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कैन बी कंसीडर्ड एज द रेशियो ऑफ MO to LO। I think you are already aware that the formula of MO is given by ELO divided by 2ME। तो बेटा MO divided by LO हो जाएगा E divided by 2 times of ME। Charge on one electron E divided by 2 times of mass of electron। Now can I say students ये दोनों टर्म कौन है? स्मॉल e का वैल्यू होगा 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। अब जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 8.8 into 10 raised to 10 कूलम पर kg। 8.8 into 10 raised to 10 कूलम पर kg। दिस इज योर गायरोमैग्नेटिक रेशियो का डिस्कशन आता है बेटा एग्जामिनेशन में, मालूम होना चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बोहर मैग्नेट्रॉन। The formula for Bohr magneton looks like this: HNE divided by 4 pi NE। First of all, what is Bohr magneton? बेटा पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, दिस इज
simplified version of magnetic dipole moment due to orbital motion of electron. वही है बेटा, h n e divided by 4 pi m e. I think हम जानते हैं e m e 4 pi सबको. What is n? बेटा n over here is principal quantum number, also called as orbit number. h का मतलब Planck constant, 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. This is your Planck constant. I seriously feel students, except n, बाकी सारे वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम लोग n को 1 डाल दें, ऑर्बिट नंबर को हम 1 डाल दें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम 1 डाल दें. When we do that बेटा हमें mo का फॉर्मूला मिलने वाला है he divided by 4 pi me. Students, I think all the values are constant and right now आप सभी वैल्यू को अच्छे से जानते हैं. तो बेटा ये जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, आपको वैल्यू मिलेगा 9.274 into 10 raised to minus 24 ampere meter square. 9.274 into 10 raised to minus 24 ampere meter square. So this number is basically Bohr magneton. So what do you mean by Bohr magneton, beta? It is magnetic dipole moment due to orbital motion of electron when it is in orbit number 1. Value fix करके आप इसको याद करें. Now the good part is, in case आपको m को ढूंढना है for orbit number 1, ये तो डायरेक्ट हो गया, right? Now अगर आपको ढूंढना है बेटा mo for orbit number 2, आप ये वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आपको ढूंढना है बेटा mo for orbit number 3, आप यही वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा. I think you got the importance of knowing the value of Bohr magneton. Are you following this? तो बेटा हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने फोकस किया ऑन ऑल द टर्म व्हिच आर रिलेटेड टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के साथ साथ स्पिन भी तो करता है. सो कैन आई से लाइक दिस स्टूडेंट्स, द टोटल magnetic dipole moment of electron is given by the vector sum of magnetic dipole moment due to orbital motion and spin motion. Yes. तो बेटा ये m वेक्टर का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा mo वेक्टर प्लस ms वेक्टर. ये होगा ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ये होगा स्पिन मोशन की वजह से. आप दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करोगे, आपको मिलेगा टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन. ये आर यू फॉलोइंग? नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आपके लिए डिस्कशन अबाउट ऑल द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल. बेटा फर्स्ट टर्म इज मैग्नेटाइजेशन, mz, also called as intensity of magnetization I. I repeat this. Magnetization mz, which is also called as intensity of magnetization I. बेटा फॉर्मूला होगा mz is equals to net magnetic dipole moment per unit volume. That is equals to Vm divided by mu naught. बेटा mu naught तो हम जानते हैं प्रॉपर तरीके से, permeability of free space, permeability of vacuum. This will be 4 pi into 10 raised to minus 7 Weber per ampere. What is Vm beta? This is magnetic induction due to magnetization of the material. तो बेटा यूनिट क्या होगा इसका? mnet, net magnetic dipole moment. Unit will be students ampere meter square divided by volume का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब होगा. आप सॉल्व करोगे आपको मिलना है मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलना है बेटा एम्पियर पर मीटर. आर यू फॉलोइंग? सो फॉर मैग्नेटाइजेशन आल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी H. फॉर्मूला ऑफ H विल बी B by mu, दैट इज V naught by mu naught, दैट इज Ni. बेटा हम लोग mu naught जानते हैं 4 pi 10 raised to minus 7 वेबर पर एम्पियर मीटर. What is V naught beta? Magnetic induction in free space. What is V beta? Magnetic induction in presence of material. Which material? जिसका permeability mu है. बेटा Ni. I is electric current. आप देखिए बेटा ये कैपिटल I लिखा हूं मैंने and this is small I. कैपिटल I किसके लिए है? Intensity of magnetization.
ये स्मॉल आई किसके लिए है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। ये स्मॉल एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो स्टूडेंट, फॉर बिग बी, फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, द यूनिट विल बी वेबर पर मीटर स्क्वायर, and for mu the unit will be Weber per ampere meter. I think Weber cancel out हो जाएगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बेटा। For big B the unit will be Weber per meter square divided by बेटा mu का यूनिट होगा Weber per ampere meter, करेक्ट है? आप क्या करिए, Weber को कैंसिल आउट करिए, मीटर दूसरा कैंसिल आउट करिए, क्या मिलना है बेटा आपको? एम्पियर इन द न्यूमरेटर, मीटर इन द डिनोमिनेटर, इट इज एम्पियर पर मीटर, मतलब दोनों का ऐसा यूनिट बेटा सेम। यस, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास आपके लिए काई एम, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। काई एम इज इक्वल टू mz अपॉन h। बेटा कैन आई से एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, यूनिट्स विल कैंसिल आउट, सो काई एम विल बी नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आपके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। बेटा आप ही जानते हो रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो दैट आपके मीडियम का परमिएबिलिटी फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी के कंपैरिजन में कितना है। फिजिक्स में कंपेयर करना मतलब डिवाइड करना, मतलब रिलेट करना, मतलब रेशियो लेना। म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट, दैट इज 1 प्लस काई एम। तो बेटा ये भी तो वही है म्यू आर, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो ये भी कैसा होगा? यूनिट लेंथ होगा। यस स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडीइंग ऑल दिस फोर इंपॉर्टेंट? ये जो मैग्नेटाइजेशन इससे हमें समझता है ability of the substance to magnetize itself. This is ability of the magnetic field to magnetize the substance. Magnetic susceptibility से हमें ये समझेगा how easily a substance can be magnetized. इसलिए students, for diamagnetic material this chi m is small and negative, जिसको मैग्नेटाइज होना पसंद ही नहीं है। For paramagnetic material, this chi m is small but positive, and for ferromagnetic material, which can be easily magnetized, beta chi m will be large and definitely positive. आप समझे? And definitely relative permeability के मदद से हम हमारे मीडियम के permeability को फ्री स्पेस के permeability से कंपेयर भी तो कर रहे हैं, ये इसका एडवांटेज है। क्या समझेगा आपको? Ability of the substance to magnetize itself. Magnetic intensity से आपको क्या समझेगा? Ability of the magnetic field to magnetize the substance. Magnetic susceptibility से आपको क्या समझेगा? How easily a substance can be magnetized. And mu r से आपको क्या समझेगा? आप कंपेयर कर पाओगे अपने मीडियम के परमिएबिलिटी को फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी से। Now students, in case we are considering a toroid, हमने एक कोर यूज किया हुआ है, अज्यूम कर लेते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है, उसके ऊपर हमने टर्न्स को वाइंड करके रखा हुआ है। बेटा लेट्स से कोर मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, लेट्स से कोर मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन? द आंसर इज बी नॉट। मैग्नेटिक इंडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कोर के मैग्नेटाइजेशन के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं, बी नॉट। अच्छा, बट सच में तो हम जब करंट फ्लो करवाएंगे तो कोर भी मैग्नेटाइज होगा, सो उससे सेपरेटली एक मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, दैट विल बी Bm. सो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोर? द आंसर इज B. बहुत सही फॉर्मूला है बच्चों, आप इसको सुनिए ठीक तरीके से। व्हाट इज B नॉट? मैग्नेटिक इंडक्शन विदाउट मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, या फिर आप इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, व्हाट इज Bm? Magnetic induction due to magnetization of core. And what is B? Total magnetic induction in presence of core. आप समझे कि नहीं? This is magnetic induction without magnetization of core. What is Bm? Magnetic induction due to magnetization of core. And what is B? Total magnetic induction. Total magnetic induction in presence of core. तो बेटा can I say जब कोर मैग्नेटाइज नहीं हो रहा था तो मैग्नेटिक इंडक्शन था B नॉट, अब जब कोर मैग्नेटाइज हो रहा है तो मैग्नेटिक इंडक्शन है B नॉट प्लस Bm, which is nothing but B.
मतलब हमने जो ओवरऑल मैग्नेटिक इंडक्शन है वो बढ़ा है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके ऊपर आता है बेटा क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज सर कितना परसेंटेज हमने मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज किया? हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज बेटा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, द होल टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100। यस बेटा, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा काई m मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है बेटा। ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे बताइए, हम करा देंगे आपको। बेटा काई m मल्टीप्लाइड बाय 100 percentage increase in magnetic induction का b minus b naught upon b naught the whole into 100। when we simplify this हमें मिलने वाला है बेटा chi m multiplied by 100। बेटा नेक्स्ट है effect of temperature on magnetic susceptibility। अब if we are considering बेटा diamagnetic material, तो उसका जो magnetic susceptibility होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। chi m is proportional to t raised to 0। Magnetic susceptibility of a diamagnetic material is independent of temperature। आप टेम्परेचर कितना भी क्यों ना चेंज कर दे, chi m diamagnetic का चेंज नहीं होगा। That's why बेटा आपने देखा क्या ड्रॉ किया आपके लिए, स्ट्रेट लाइन विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा। दैट टू मैंने ड्रॉ किया है 1 2 3 4 इन क्वाड्रेंट नंबर 4। क्यों सर? क्योंकि बेटा अभी तो मैंने आपको बताया chi फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉल एंड नेगेटिव, तो ये भी तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा बेटा। फर्स्ट नहीं, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दैट इन क्वाड्रेंट नंबर। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्टूडेंट्स हमें यूज करना पड़ेगा क्यूरीज लॉ। एज पर क्यूरीज लॉ, magnetic susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to temperature। that temperature should be compulsory in Kelvin। तो लोग कहते हैं this is absolute temperature। करेक्ट है बेटा। so chi m versus t का जो ग्राफ होगा for a paramagnetic material will be a rectangular hyperbola। what about ferromagnetic material students? chi m is inversely proportional to the difference between t and tc। what is t? our temperature। what is tc? Curie temperature। t क्या है बेटा? हमारा टेम्परेचर। tc क्या है? Curie temperature। चलिए जल्दी से रिवाइज करिए और मुझे बताइए what is Curie temperature बेटा? the temperature at which the domain structure of a ferromagnetic material gets destroyed। और जरा याद करके ये बताइए, अगर आप सब्सटेंस को Curie टेम्परेचर के आगे भी हीट करते रहे तो क्या होगा? अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सो chi m वर्सेस t का ये ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है बेटा। ये जो tc आपको दिख रहा है दिस इज डेफिनेटली Curie टेम्परेचर। बेटा Curie टेम्परेचर के पहले तक सब्सटेंस क्या था? फेरोमैग्नेटिक था। अच्छा, Curie टेम्परेचर के बाद में सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो tc के पहले इट वाज फेरो, tc के बाद इट विल बी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यस, मुझे बच्चों कैसे करना है इसे? Next, I think we can begin with the discussion of formulae related to the bar. So we'll start with the discussion of torque acting on a bar magnet when it is placed in uniform magnetic field. Torque tau is given by the formula mb sin theta। torque tau mb sin theta। बेटा what is m? Magnetic dipole moment। आप magnetic dipole moment कैपिटल M को क्या लिख सकते हो बेटा? product of pole strength and magnetic length। yes, so capital M मतलब magnetic dipole moment, इसका फॉर्मूला क्या होगा? it is the product of pole strength and magnetic length। Big B हम जानते हैं, uniform magnetic field, uniform magnetic induction। what is theta sir? angle between M vector and B vector। तो बेटा वेक्टर फॉर्म कैसा दिखेगा? आपके टॉर्क के फॉर्मूला को बताइए जरा। tau vector is equals to M vector cross B vector। यस बेटा, जब डाइपोल घूमेगा आई थिंक हम वर्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर रोटेशनल मोशन वर्क का फॉर्मूला होगा बेटा इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा 1 अप टू फाइनल एंगल थीटा 2। अच्छा बेटा, जहां पे टाउ है, जहां पे टॉर्क आप क्या लिख सकते थे? mb sin थीटा। डी थीटा को कॉपी पेस्ट कर देते, सही है बेटा। m and b both are constant, you can just take it बाहर। So it is integration from theta 1 to theta 2 sin theta d theta। बेटा what is integration sin theta d theta? it is minus cos theta। लिमिट बताइए theta 1 से होते हुए theta 2। बेटा ये माइनस टीचर बाहर ले आए और ब्रैकेट में टीचर लिखेगा
cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। क्या कहा मैंने उसे? माइनस टीचर बाहर ले लेगा और फिर वो क्या करेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो फिर हमें पहले स्वयं कर दूं, सो इट विल बी माइनस, मैंने एस्केप कर दिया, ये हो गया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आप समझे बच्चों ये मैथमेटिक्स? सो दैट मींस हम लोग वर्क डन W को क्या लिख सकते हैं बेटा? mv मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। नेक्स्ट is students, potential energy stored in the dipole, potential energy stored in the magnet when it is in uniform magnetic field. Formula will be minus mv cos theta. बेटा इसका वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिखने वाले हो? cos थीटा है तो it can be converted to dot product and minus तो रहेगा ना बेटा, so um will be given by the formula minus of m vector dot v vector. नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपके लिए ग्राफ ऑफ um वर्सेस थीटा। So इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों? We can substitute different values of theta and we get different values of um. आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा थीटा को 0 डिग्री। What is cos 0 बेटा? 1, तो ये हो जाएगा माइनस mv। चेक कर लीजिए, this is minus mv, this coordinate is minus mv। When the angle is 0 degree, this is minus mv, potential energy is minus mv। You substitute theta as 90, what is cos 90 बेटा? 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा 0। So when theta is 90, um will be 0। अच्छा, you substitute बेटा थीटा as 180 डिग्री, what is cos 180 डिग्री का वैल्यू? -1। तो ये -1 और ये -mv मिलके हो जाएगा बेटा +mv, ये लीजिए +mv। so this coordinate over here is बेटा +mv। so this is um versus थीटा का ग्राफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। यस, हम जब एक बार मैग्नेट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, it will start performing oscillatory motion, it will start performing angular SHM। तो क्यों ना हम उसका टाइम पीरियड ढूंढने की कोशिश करें बेटा, टाइम पीरियड फॉर इट्स ऑसिलेशन। सही है, तो बेटा एक टॉर्क वो होगा जो हम अप्लाई करेंगे, कॉल्ड एज डिफ्लेक्टिव टॉर्क, गिवन बाय द फॉर्मूला I टाइम्स ऑफ अल्फा। व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज अल्फा बेटा? एंगुलर एक्सीलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टाउ आर। व्हाट इज टाउ आर? रीस्टोरिंग टॉर्क। इस टॉर्क की वजह से जो बाहर मैग्नेट है वो उसके इनिशियल पोजीशन पे आने को ट्राई करेगा। टाउ आर इज गिवन बाय द फार्मूला -mv sin थीटा, -mv sin थीटा, बट वी हैव टू कंसीडर थीटा टू बी वेरी वेरी स्मॉल। बेटा यू टेल मी ना, एक थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, कैन से हम sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव डन डायरेक्टली। आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा बेटा। टाउ आर रीस्टोरिंग टॉर्क, मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूं कि वो रीस्टोरिंग टॉर्क है -mv sin थीटा, सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, हम लोग sin थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रीस्टोरिंग टॉर्क अगर इक्वल होंगे बेटा, तभी तो जो बाहर मैग्नेट है वो उसके इनिशियल पोजीशन पे फिर से आएगा। करेक्ट है? सो एट इक्विलिब्रियम हम दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे, वी गेट दिस tau b is equal to tau r बेटा, I alpha is equal to -mv into theta। आप रीअरेंज करेंगे, अल्फा आपको मिलेगा बेटा माइनस ऑफ mv अपॉन I मल्टीप्लाइड बाय थीटा। सो स्टूडेंट्स, पूरा सिंपलीफिकेशन करके वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। करेक्ट है? नाउ सिंस दिस बार मैग्नेट इज परफॉर्मिंग एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं हमारे जो एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको जब इस्तेमाल करूंगा तो मुझे मिलेगा angular acceleration alpha is equals to minus of omega square into theta। Simplified version of differential equation for angular simple harmonic motion beta, alpha will be minus of omega square into theta। I think when you equate beta आपको realize होगा, alpha आप equate करोगे, theta cancel out होगा, minus भी cancel out होगा, omega square is mv divided by r। So when you are taking square root beta, आपको omega मिलेगा under root of mv divided by r। Now students, we were interested in time period। मैं याद दिला दूं आपको, ये ओमेगा का फॉर्मूला होगा 2 पाई बाई t। सो t का फॉर्मूला होगा 2 पाई बाई ओमेगा, सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ i बाई m। आर यू फॉलोइंग? यस, ये तो हमने इनडायरेक्टली पूरा डेरिवेशन ही कर दिया है कि बच्चों। सो टाइम पीरियड t का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ i डिवाइड बाई m। So students, I is moment of inertia। If it is required, आप अपने रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। हम बाहर मैग्नेट के रोटेशन की बातें कर रहे हैं तो I का आप फॉर्मूला यूज करेंगे WL² by 12।
जस्ट टेक केयर ऑफ वन थिंग बेटा, W वेट नहीं है, W इज द मास। मैं फॉर्मूला में W इसलिए बोल रहा हूं कि आपको W से याद आएगा वेट, एंड आप सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, मास। वैसे तो M भी ले सकते हैं, बट आपको कंफ्यूजन होगा बेटा। कैपिटल M is usually used for magnetic dipole moment बेटा, and small m is usually used for determination of pole strength। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल M आपको दिख रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो मास यूज करेंगे वो सिंपल आप W दिखाइए, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, आएगा WL/12। W वेट नहीं है, W इज द मास ऑफ द मैग्नेट, एंड व्हाट इज L बेटा, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। करेक्ट है बच्चों, टाइम पीरियड मिल चुका है आपको। आई थिंक हमें क्लियरली याद होगा ये मैग्नेटोमीटर डिवाइस का यूज करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं कैपिटल M। सो आई डोंट थिंक सो अगर कैपिटल M आपसे पूछा तो स्क्वायर करके रीअरेंज करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो आप कर लीजिएगा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स इन दिस फॉर्मूले लिस्ट का सेशन हमने आपको सारे फॉर्मूलेस कवर करवा दिए विच आर देयर इन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। सो आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रेडी है बेटा। आई होप दिस सेशन इज यूजफुल टू यू। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।